Hello student. In this video lecture, we are starting with the mechanism of cellular respiration. As the cellular respiration is taking place in every type of living cell. Either it is prokaryotic cell or it is eukaryotic type of cell. In prokaryotic cell, plasma membrane form a special infolding which is called as mesosome, and that mesosome is responsible for respiration, DNA replication as well as separation of the chromosome. Let us consider this is bacterial cell wall. Just beneath the bacterial cell wall, this is plasma membrane, and this infolding of the plasma membrane is known as what? Mesosome. And in bacteria, these mesosomes are act as a site of respiration. But respiration is more complex in eukaryotic cell. Eukaryotic plant cell as well as eukaryotic animal cell contain a special organelle which is called as mitochondria. So some part of respiration is taking place in the mitochondria and the some part of respiration is taking place in the cytoplasm. So this is cytoplasmic space, and this organelle is powerhouse of the cell, that is mitochondria. The detailed structure of the mitochondria we'll see in the next lecture, but now we are focusing in the cytoplasm. The part of respiration which takes place in cytoplasm is anaerobic type of respiration. In the last lecture, we had discussed that respiration are of two types, aerobic respiration and anaerobic respiration. In the eukaryotic cell, both type of respiration are taking place. In the last lecture, we had also classified the phases of respiration in eukaryotic cell. So this is eukaryotic cell. In this cell, the first phase of the cellular respiration is always taking place in the cytoplasm, which did not need the oxygen. Means the first phase of cellular respiration which taking place in the cytoplasm is anaerobic phase, and that first phase of the respiration is called as glycolysis. So all you are familiar with this word glycolysis. It is made up of combination of two words. The first one is glyco, and here glyco means glucose, which is the chief respiratory substrate. And the second word is lysis. The term lysis means splitting. स्प्लिटिंग का मतलब होता है टूटना, ब्रेकिंग भी कह सकते हैं आप इसको, या ब्रेक डाउन भी कह सकते हैं। मतलब यह हुआ कि इन दिस ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस ग्लूकोज गेट स्प्लिटेड और ग्लूकोज गेट अंडरगो broken down. This glycolysis were discovered by three German scientists. थ्री जर्मन साइंटिस्ट, यानी ये तीन साइंटिस्ट लोग जर्मनी के रहने वाले थे। इनमें से पहले का नाम था एम्बेडेन, दूसरा मेयर हॉफ और तीसरे साइंटिस्ट का नाम था पेर्नस। तो ग्लाइकोलाइसिस का अल्टरनेट नाम रखने के लिए इन तीनों साइंटिस्ट लोगों ने अपने नाम का पहला लेटर यूज किया, एम्बेडेन का ई, मेयरहॉफ का एम और पेर्नस का पी। तो बच्चों शॉर्ट टर्म यहां पे बन गया ई एम पी। कई मर्तबा आपने देखा होगा कि ग्लाइकोलाइसिस को ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। ईएमपी का फुल फॉर्म साइंटिस्ट के नाम होते हैं एक्चुअली।
E फॉर एम्बेडन, M फॉर मेयरहॉफ एंड P फॉर पेरनस। इन तीनों में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन मेयरहॉफ का था और मेयरहॉफ को फिर कुछ और डिस्कवरी करने के बाद में नोबेल पुरस्कार दिया गया। खैर ये क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा नीट में, लेकिन ये जरूर पूछ सकता है कि ईएमपी पाथवे में ईएमपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप उसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा। सेकंड वर्ड में यूज किया यहां पर ईएमपी पाथवे। पाथवे का मीनिंग क्या होता है? पाथवे और एक वर्ड फ्रीक्वेंटली आता है साइकिल। तो ये दोनों टर्म में आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं एक मर्तबा बता दूं कि पाथवे सीरीज ऑफ रिएक्शंस को कहते हैं। ऐसी सीरीज ऑफ रिएक्शन जिसके स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट डिफरेंट होते हैं। मतलब रिएक्शन स्टार्ट हुई मान लीजिए पॉइंट ए से, सीरीज ऑफ रिएक्शन बढ़ती गई और ई पर मतलब इस पॉइंट पर रिएक्शन एंड हो गई। सो फर्स्ट सबस्ट्रेट और फर्स्ट रिएक्टेंट इज क्वाइट डिफरेंट देन द लास्ट forming product. This series of reaction is called as pathway. Second thing आती है एक cycle. Cycle is also series of reaction, but the starting point and end point is same. Example, आपका रिएक्शन स्टार्ट हुआ A, फिर B प्रोडक्ट बन गया, फिर C प्रोडक्ट बन गया, फिर D, फिर प्रोडक्ट हो गया E, और लास्ट में फिर से आप को प्रोडक्ट मिल गया ए। मतलब जहां से आपने स्टार्ट किया घूम फिरकर वहीं पर आके आप एंड हो गए। इट इज कॉल्ड एज सीरीज ऑफ रिएक्शन साइकिल एंड इट इज कॉल्ड एज सीरीज ऑफ रिएक्शन पाथवे। तो स्टूडेंट हम जो ग्लाइकोलाइसिस स्टडी करने जा रहे हैं, आपको हिंट तो लग गया होगा कि क्योंकि ये एक पाथवे है इसीलिए इस पाथवे में बहुत सारी रिएक्शंस आएगी। स्टार्टिंग पॉइंट अलग रहेगा, एंड पॉइंट अलग रहेगा, बहुत सारी रिएक्शन आएगी। तो कितनी रिएक्शन आएगी मैं आपको क्लियर कर दूं। पहले के ग्लाइकोलाइसिस में टोटल 10 डिफरेंट रिएक्शंस होती है। इस तरह की सीरीज रहेगी और इस सीरीज में टोटल रिएक्शंस कितनी रहेगी? 10। अमंग दिस 10 रिएक्शन द फर्स्ट 5 रिएक्शन एंड लास्ट 5 रिएक्शन आर क्लासिफाइड डिफरेंटली। ग्लाइकोलाइसिस के कंप्लीटली ऐसी तरह के 10 रिएक्शंस रहेंगे, लेकिन 10 में के पहले जो 5 रिएक्शंस रहेगी उन पहली 5 रिएक्शन को हम नाम देंगे प्रिपरेटरी फेज। क्योंकि ग्लूकोज इन पहली 5 रिएक्शन में खुद को प्रिपेयर करेगा एटीपी प्रोड्यूस करने के लिए। तो in the 10 reactions of glycolysis, the first 5 reactions are called as preparatory phase because glucose preparing itself to generate the ATP. Last 5 reaction यानी reaction number 6, 7, 8, 9, 10. Last 5 reaction are called as payoff phase. पे ऑफ यानी पे कर देना। अब ग्लूकोज इन रिएक्शंस में एटीपी पे ऑफ करेगा, इसीलिए लास्ट की 5 रिएक्शंस को यानी फ्रॉम रिएक्शन 6 टू रिएक्शन 10 दे आर कॉल्ड एज पे ऑफ फेज। सो लेट अस स्टार्ट ग्लाइकोलाइसिस विथ क्वाइट डिटेल ईच एंड एवरी रिएक्शन। आपको ये ध्यान में रखना जरूरी है कि रिएक्शन का नाम क्या है और रिएक्शन में कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है, कौन सी रिएक्शन में एटीपी प्रोड्यूस होगा, कौन सी रिएक्शन में एटीपी यूटिलाइज होगा। पहली 5 रिएक्शन में एटीपी यूटिलाइज होगा रिएक्शन नंबर 1 और रिएक्शन नंबर 3 में। प्रिपेयर होने के लिए ग्लूकोज अपने आप को प्रिपेयर करेगा और एटीपी यूज करेगा। कौन सी रिएक्शन में यूज होगा? 1 और 3। पे ऑफ फेज में अब ग्लूकोज जब एक्टिवेट हो चुका है तो एटीपी प्रोड्यूस करेगा, मतलब पे करेगा। तो रिएक्शन नंबर 7 और रिएक्शन नंबर 10 ये ऐसी रिएक्शंस हैं जिनमें एटीपी प्रोड्यूस होंगे यानी बाहर निकलेंगे पाथवे के और सेल में स्टोर हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी विच आर कॉल्ड एज एनर्जी करेंसी। अब देखिए
पहले मैं आपको मैकेनिज्म यहाँ पे बना के बता दूं, फिर अपन देखेंगे कि रिएक्शन नंबर 1, 3, 7, 10 इनमें क्या कोरिलेशन होता है. सो लेट अस डिस्कस अबाउट all the reactions of glycolysis in more detail. So let us consider this complete board is a cytoplasmic arena, or this board is a cytoplasmic space. लास्ट लेक्चर में मैं आपको बताया था कि ग्लूकोज को ही क्यों रेस्पिरेटरी या चीफ रेस्पिरेटरी सोर्स कहते हैं, बिकॉज ग्लूकोज इज इजीली डिफ्यूजेबल इनसाइड द सेल. तो मान लीजिए कि बोर्ड के बाहर से बोर्ड के अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल आ चुका है. ये जो गोट है बोर्ड की, फॉर एग्जांपल दिस इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो बाय क्रॉसिंग द बायोमोलिक्यूलर लिपिड और लिपिड बाइलेयर, glucose molecule get enter in the cytoplasm. So glucose, this is suppose glucose. Okay, क्या फार्मूला होता है ग्लूकोज का? तो आप सब कि ग्लूकोज इज C6H12O6 4, 5, 6. This is 6 carbon chain of the हेक्सोस sugar. Okay. और ग्लूकोज का स्पेशलिटी ये है कि ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन के पास में अल्डेहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है. तो देखिए बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको डिटेल एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि जब ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में आता है तो इस ग्लूकोज पर साइटोप्लाज्म एटीपी से अटैक करेगा. एटीपी का डिटेल स्ट्रक्चर एक पर्टिकुलर लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं. एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसमें 3 फास्फोरस ग्रुप होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा बॉन्ड से कनेक्टेड. हमेशा गामा बॉन्ड ब्रेक होगा और एक फास्फोरस फ्री हो जाएगा. वो जो फ्री होने वाला फास्फोरस है, वो फ्री फास्फोरस इस ग्लूकोज के 6 कार्बन चेन पर अटैच होना चाहता है. ध्यान से सुनिएगा इस बात को. तो वो जो फ्री फास्फोरस है, दैट फ्री फास्फोरस विल सर्च द फ्री कार्बन. फ्री कार्बन यानी ऐसा कार्बन जिस पर स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप अटैच ना हो. तो फास्फोरस आया, अब उसने पहले कार्बन के पास गया, तो पहले कार्बन के पास ऑलरेडी अल्डेहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है. पहला कार्बन फास्फोरस को अटैच होने की परमिशन नहीं देगा. तो वो फास्फोरस को सिर्फ टर्मिनल कार्बन ही चाहिए, मिडिल कार्बन में फास्फोरस नहीं बैठ सकता है. इसीलिए वो फास्फोरस अब डायरेक्ट जाएगा अनदर टर्मिनल कार्बन के पास. तो इस चेन में टर्मिनल कार्बन सिर्फ 2 ही, कार्बन नंबर फर्स्ट एंड कार्बन नंबर लास्ट. कार्बन नंबर फर्स्ट ने फास्फोरस को अटैच होने की परमिशन तो नहीं दिया, तो फास्फोरस को मजबूरन कार्बन नंबर 6 के पास जाना पड़ा. कार्बन नंबर 6 के पास OH ग्रुप भले ही है, लेकिन अल्डेहाइड, कीटोन ऐसे फंक्शनल ग्रुप नहीं है. इसीलिए कार्बन नंबर 6 ने इजीली परमिशन दे दिया फास्फोरस को. तो यहाँ पे फास्फोरस आकर हो गया अटैच. अब आप देखिए कि पहले जब मैंने फास्फोरस नहीं बनाया था तो इस मॉलिक्यूल का नाम हुआ करता था ग्लूकोज. अब मैं फास्फोरस बनाया, क्यों? क्योंकि फास्फोरस अटैच हो गया आगे. कौन से कार्बन नंबर पर अटैच हो? 6 कार्बन पे. इसीलिए आपके इस मॉलिक्यूल का नाम पड़ गया ग्लूकोज 6 फास्फेट. ये यहां पर इसका ये मतलब नहीं है कि ग्लूकोज के पर 6 फास्फोरस कनेक्टेड है. जी नहीं, फास्फोरस एक ही है. तो फिर हमने 6 क्यों लिखे? कौन से नंबर के कार्बन पर फास्फोरस अटैच हुआ, तो आपको कार्बन का वो नंबर यहां पे मेंशन करना पड़ेगा. ग्लूकोज 6 फास्फेट. दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस. अब इस फर्स्ट रिएक्शन का नाम क्या रखना है? हम अपने दिल से तो कुछ भी नाम नहीं रख सकते, मैकेनिज्म के हिसाब से नाम रखना पड़ेगा. तो ठीक है सर, बोलिए कि मैकेनिज्म कौन सा हुआ. आप देखिए कि ये तो पहले सादा ग्लूकोज था. ग्लूकोज के साथ में क्या हुआ या ग्लूकोज में क्या चेंज हुआ? तो आप बोलेंगे कि सर ग्लूकोज में फास्फोरस आकर अटैच हुआ, फास्फोरस ऐड हो गया ग्लूकोज के साथ. तो ऐड होने वाली प्रोसेस को कहते हैं राइलेशन. RY, राइलेशन. ओके, मींस एडिशन. एडिशन
एडिशन हुआ, कौन से मॉलिक्यूल का एडिशन हुआ भाई? फास्फोरस का। तो हम यहां पे लिख देंगे पहले फास्फो। ओके, तो आपके रिएक्शन का नाम हो गया फास्फोराइलेशन। थोड़ा सा इसको जूम कर देना, फास्फोराइलेशन। अब देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि ग्लाइकोलाइसिस हो या एसिटाइलेशन हो या फिर क्रेब्स साइकिल हो, कोई भी मैकेनिज्म में अगर रिएक्शन में एटीपी का इन्वॉल्वमेंट होता है, हमेशा याद रखिएगा इस पॉइंट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट और शॉर्टकट ट्रिक है। किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन में एटीपी का इन्वॉल्व अगर होता है तो उस रिएक्शन में एक ही एंजाइम वर्क करेगा और उस एंजाइम का नाम रहेगा काइनेज। यस, which enzyme? Kinase is required for those reaction which are occurring by the involvement of ATP। तो क्वेश्चन मार्क, सवाल है निशान कि सर यहां पे एटीपी का इन्वॉल्वमेंट हुआ है या नहीं? एग्जैक्टली यहां पे एटीपी का इन्वॉल्वमेंट हुआ, क्योंकि मैं आपको ओरली बताया कि एटीपी के 3 फास्फोरस में से एक फास्फोरस ज्वाइन हुआ। तो इस फास्फोरस को दिया किसने? एटीपी ने लाकर दिया, मींस एटीपी इज इन्वॉल्वड इन द रिएक्शन। अच्छा, ग्लूकोज ने एटीपी का यूज किया या एटीपी प्रोड्यूस करके बाहर रिलीज किया? यस, एग्जैक्टली, ग्लूकोज यूटिलाइज द एटीपी। तो यहां पे आपको एक एटीपी मॉलिक्यूल अंदर जाते हुए बताना पड़ेगा। दिस इज रिएक्शन नंबर फर्स्ट विच यूटिलाइज द एटीपी, means one phosphorus of the ATP. So ATP used, इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ATP, adenosine triphosphate, is donating its one phosphorus, and after donating one phosphorus itself, it will become ADP. तो एरो पर तवज्जो दीजिए, 3 में से एक फास्फोरस ग्लूकोज पर अटैच हो गई यहां पर। अब इसके पास कुल 2 फास्फोरस बचे, इसलिए हमने यहां लिख दिया ADP। So this is first reaction which is called as phosphorylation, and which enzyme is used? Kinase. Why? Because there is a involvement of ATP. No matter that either ATP is utilized or ATP is produced, ATP is involved enough. Reaction take kinase enzyme. अब ये मेन नाम है एंजाइम का, इसके पहले आप यानी काइनेज के पहले आप सबस्ट्रेट का नाम लगा सकते हैं। कई बुक्स में आप देखेंगे तो यहां पे लिखा हुआ है हेक्सोकाइनेज। सो व्हाट हेक्सो रियली मीन फॉर? हेक्सो represent the hexose sugar and your glucose is a hexose sugar, means hexose represent the name of substrate but the main enzyme is kinase. So hexokinase is complete one name like this, hexokinase, and kinase enzyme require magnesium bivalent for its activity. Enzyme कोफैक्टर के बगैर वर्क नहीं कर सकता है, मैक्सिमम एंजाइम ऐसे है। तो आपका जो काइनेज एंजाइम है इसको कौन सा कोफैक्टर चाहिए? इसको इनऑर्गेनिक एलिमेंट मैग्नीशियम बाइवेलेंट चाहिए होता है एक्टिविटी के लिए। तो ये हो गया आपका 10। नाउ रिएक्शन नंबर सेकेंड। अभी देखिए प्रॉब्लम ऐसा है कि कोई भी चीज, इस दुनिया की कोई भी चीज अगर अनस्टेबल है तो वो अपने आप को स्टेबल करना चाहती है। मान लीजिए कि आप बहुत देर से स्टैंड अप मोड में है, खड़े हुए हैं आप 2 घंटे खड़े, 3 घंटे, 4 घंटे, आपके लेग्स पेन कर रहे हैं, आपके लेग्स जॉइंट जो है वो पेन कर रहे हैं, तो आप अभी अनस्टेबल स्टेट में। तो आप क्या चाहेंगे? आप बैठ जाना चाहेंगे। क्यों बैठना चाहेंगे? क्योंकि बैठने में आपका स्टेबिलिटी हो जाएगा। सेम थिंग बायोकेमिकल के साथ में भी होती है। जब भी बायोकेमिकल अनस्टेबल है तो वो खुद को स्टेबल करना चाहते हैं। अब यहां पर अनस्टेबिलिटी का मतलब क्या है? क्या ये कंपाउंड अनस्टेबल है या फिर स्टेबल है? देखिए कार्बन की चेन में जैसा मैं आपको बताया कि 2 टर्मिनल कार्बन होते हैं। अगर दोनों टर्मिनल कार्बन हैवी ग्रुप के साथ बिजी हैं,
अगर दोनों टर्मिनल कार्बन हेवी ग्रुप्स के साथ में बिजी हैं तो ये समझा जाएगा कि ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल है। मैं हमेशा क्लास में एग्जांपल देते रहता हूं, आपको भी वीडियो लेक्चर के थ्रू सेम एग्जांपल दूंगा कि मान लीजिए एक सांप है, स्नेक। वो स्नेक आपके पैरों के पास में आ गया और आपने आपका 1 फीट उसके मुंह पर रख दिया है और एक दुम पर रख दिया, एकदम कॉर्नर पर। तो वो सांप एकदम अच्छा फील करेगा? विल इट फील वेरी कूल? नहीं, वो सांप अनस्टेबल हो जाएगा और वो ये चाहेगा कि 2 एंड में से मेरा कोई एक एंड फ्री हो जाए, चाहे मेरी पूंछ यानी कि दुम फ्री हो जाए या फिर मेरा माउथ फ्री हो जाए। सेम उसी मैनर में ये सांप या ये मॉलिक्यूल, इसकी दुम और इसका चेहरा दोनों भी क्या हो गए? बिजी हो गए। तो ये चेन अनस्टेबल हो गई और अनस्टेबल मॉलिक्यूल क्या चाहेगा? खुद को स्टेबल करना चाहेगा। गुड, वेरी गुड। तो स्टेबल करने के चक्कर में क्या होता है कि इस ग्लूकोज के 2 फ्री कार्बन में से, सॉरी 2 टर्मिनल कार्बन में से एक टर्मिनल कार्बन फ्री करने की कोशिश करेगा अपने आप को, वो होता है फर्स्ट कार्बन। तो फर्स्ट कार्बन अपने ऊपर से अल्डिहाइड ग्रुप को रिमूव कर देता है, जो नीचे चले जाएगा सेकंड कार्बन पे और सेकंड कार्बन पे जाके बन जाएगा कीटोन। यस, वेरी गुड। अब आप लोग समझ गए कि ये स्ट्रक्चर अब इट इज नॉट मोर ग्लूकोज, नाउ इट विल बिकम व्हाट? फ्रुक्टोज। फर्स्ट कार्बन पे अल्डिहाइड, इट इज अ ग्लूकोज, सेकंड कार्बन पर कीटोन आ गया, मतलब अब ये क्या बन गया है? फ्रुक्टोज। So what will be the name of this structure now? Very nice. It will become fructose 6-phosphate. क्योंकि 6 कार्बन पे फास्फोरस तो भी है ना, तो it is 6-phosphate. But function group become ketone on second carbon. So it is fructose 6-phosphate. अब आप लोग जरा सोचिए कि इस रिएक्शन में यानी ऊपर से नीचे शिफ्ट होने के लिए इस रिएक्शन में क्या चेंज हुआ? कौन से प्रकार का चेंज हुआ? क्या कोई ग्रुप ऐड हुआ या कोई ग्रुप एलिमिनेट हुआ? जी नहीं। देयर इज नाइदर एडिशन नॉर एलिमिनेशन, बट देयर इज अ शिफ्टिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप और चेंज इन फंक्शनल ग्रुप। अल्डिहाइड बिकम कीटोन एंड अल्डिहाइड कीटोन बोथ आर very nice isomers of each other. So this reaction is called as, yes, isomerization reaction, and enzyme required in this reaction is on the basis of its name. Enzyme required is isomerase. This is what? This is the second reaction of the glycolysis. Next thing. नाउ अभी क्या है कि बहुत कश्मकश शुरू है इस मॉलिक्यूल में और साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म चाहता है कि मॉलिक्यूल स्टेबल ना हो पाए और मॉलिक्यूल चाहता है कि भाई मैं तो स्टेबल होकर रहूंगा, कुछ भी हो जाए मैं अपने आप को स्टेबल रखूंगा। लेकिन साइटोप्लाज्म, जैसे जो लोग कॉम्पिटिटर रहते हैं ना, जूलियस वाले रहते हैं कि भाई इसलिए स्टेबल नहीं रहना, कभी खुश नहीं रहना, तो वैसा साइटोप्लाज्म चाहता है कि मॉलिक्यूल ने कभी भी स्टेबल नहीं रहना। तो साइटोप्लाज्म इसको फिर से अनस्टेबल करना चाहता है और अनस्टेबल करने के लिए साइटोप्लाज्म फिर से एक और एटीपी से हमला करेगा। एटीपी सिर्फ एक फास्फोरस डोनेट कर सकता है, गामा बॉन्ड ब्रेक करके। वो जो फास्फोरस है, वो फास्फोरस कौन से कार्बन पे बैठना पसंद करेगा? सेंट्रल कार्बन्स पर या टर्मिनल कार्बन्स पर? यस, ऑफ कोर्स टर्मिनल कार्बन। लेकिन यहाँ पे टर्मिनल कार्बन पे ऑलरेडी फास्फोरस है, तो फास्फोरस कौन से? यस, फर्स्ट कार्बन पे फास्फोरस अटैच हो जाएगा, लाइक दिस। नाउ व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? There are total how many carbon? 6 carbon chain. Functional group is ketone. How many phosphorus are there? 2 phosphorus. And both phosphorus lies on the different carbon. Therefore, instead of using the term di for 2 or bi
for 2. We must have to use the term bis, BIS, bis. ये हमारा 20 वाला 20 नहीं है, यहाँ पे 20 का मतलब 2 होगा, 2. लेकिन 20 टर्म कब यूज करेंगे? जब आपका फास्फोरस अलग अलग कार्बन पर है, एक ही चेन के. अगर एक ही कार्बन पे 2 फास्फोरस रहते, सो ऑफ कोर्स यू विल use the term diphosphate or biphosphate, but the situation is that yeah, 2 phosphorus are present on the 2 different carbon of the same chain and functional group is ketone on the second carbon. That's why the name of this compound will be, of course it is fructose 1,6 bis P for phosphate, क्योंकि फास्फोरस 2 है फर्स्ट एंड 6 कार्बन के ऊपर. दिस इज योर थर्ड रिएक्शन. व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इवेंट? इवेंट क्या हुआ कि फास्फोरस अटैच हो गया एंड अटैचमेंट इज एडिशन. एडिशन इज कॉल्ड एज व्हाट? वाइलेशन. एडिशन किसका हुआ? फास्फोरस का. तो सेम नेम, फॉस्फोराइलेशन. अब यहाँ पे ये भी फॉस्फोराइलेशन है, रिएक्शन नंबर 1. रिएक्शन नंबर 3 भी फॉस्फोराइलेशन है. सो कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे फॉस्फोराइलेशन फर्स्ट एंड फॉस्फोराइलेशन सेकेंड. कैन यू गेस व्हिच एंजाइम इज नीडेड हियर? Yeah, of course it is kinase, because there is an involvement of what? ATP. So enzyme must be kinase. काइनेज के पहले आप सबस्ट्रेट का नाम लिख सकते हैं. यहाँ पे सबस्ट्रेट कौन सा? फ्रुक्टोज. फ्रुक्टोज विद फास्फोरस, तो सबस्ट्रेट का नाम फॉस्फो फ्रुक्टो, PF, फॉस्फो फ्रुक्टो काइनेज is the name of enzyme in this third reaction. Now fourth reaction.